And today, if you talk to me and see my OPD practice, there are almost 40% of the arthritic patients coming in middle age or younger age group. Wow. All these factors are rampantly increasing in Indian population because of the sheer reduction of physical activity. So there are multiple factors, whether it is genetic, whether it is environmental, whether there is lifestyle. So all these factors have contributed for Indians getting more predisposed to knee or the arthritic problem. Crux of the entire discussion is that bringing change in your way of living, in the way, the kind of food you eat, and the kind of outdoor activities you have, and being aware of those simple steps or treatment modalities so as to prevent your knee going from one stage to an advanced stage. कोल्ड एक्सपोजर होता है, उनकी वेसल्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, 60-70% ब्लॉकेज में चल रही होती है, जैसे ही ठंड पड़ती है वेसल सिकुड़ती है और वो ब्लड क्लॉट कर देता है और एमआई कर देता है, हार्ट अटैक कर देता है. Hi Dr. Ashish, nice to have you on Health on Air. Thank you. Why are the knee and joint problems increasing rapidly among Indians even at younger age? So knee problems, I've been into orthopedics for last 20 odd years, and if I recall my initial training days, I used to see osteoarthritis or knee problems only at people aged more than 65-70 years. And today, if you talk to me and see my OPD practice, there are almost 40% of the arthritic patients coming in middle age or younger age group, which is a very alarming figure. So much so, there has been patients in late 30s and 40s who are suffering from very severe disabling arthritis. I really had to go for surgery also in that young age group. So there are many reasons why young population is suffering. The most important 2-3 reasons would be the genetic predisposition of Indians to develop cartilage deficiency or cartilage loss much earlier or more than the Western population. Okay. There is also impact of the lifestyle, wherein we have got a lot of sedentary lifestyle. Yes. Where we have a habit to sit on the ground, squatting, so that's a cultural habit. We have a fixed 9 to 5 sitting job, and obesity and diabetes. Wow. All these factors are rampantly increasing in Indian population because of the sheer reduction of physical activity, which normally should everyone do in a day's time. So because of these factors, somehow the disease is affecting the economically viable population. That's the middle age, younger age group. Because if you talk about people working in IT industry, they are sitting from 8 o'clock in the morning till night. They are not exposed to sunlight. Of course, that causes severe vitamin D deficiency. They are sitting on the chair, same thing, looking down on the laptop. There's no adequate supplementation. They're not taking meals on proper timings. Right. They don't have adequate mix of protein in their diets. So there are multiple factors, whether it is genetic, whether it is environmental, whether there is lifestyle. So all these factors have contributed for Indians getting more predisposed to knee or the arthritic problem. Okay. अच्छा, इसमें मोटापा, शारीरिक गतिविधि की कमी और लंबे समय तक बैठकर काम करना जोड़ों को कितना नुकसान पहुंचाता है? ओबेसिटी तो एक बहुत ही बड़ा एनिमी है फॉर आर्थराइटिस फॉर द नी जॉइंट. 60-70% of arthritic patients are somehow related. The cause is the obesity. और हम एक आमतौर पे एक फिगर को कोट करते हैं कि अगर हमारा स्टैंडर्ड बॉडी वेट में अगर 1 किलो बढ़ता है तो उससे हमारे घुटने में 3 से 4 गुना वजन ज्यादा पड़ता है. ओके. तो उसका डैमेज, उसका कार्टिलेज लॉस ज्यादा हो जाता है. तो ओबेसिटी तो 60 से 70% कंट्रीब्यूटर है ही. अच्छा, घुटनों या जोड़ों की खराबी के ऐसे कौन सी शुरुआती लक्षण है जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? सो अर्ली साइंस 2 चीजों से इम्पोर्टेंट है. एक तो अगर हम अर्ली साइंस को पकड़ लें तो हम आर्थराइटिस को बचा सकते हैं आगे बढ़ने से और उसको बहुत सारे प्रोडक्टिव ईयर्स दे सकते हैं. तो जैसे कि रेगुलर पेन होना, स्टिफनेस होना, स्पेशली इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में स्टिफनेस और पेन होना, ये एक अर्ली साइन है. किसी पेशेंट को सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, लॉन्ग स्टैंडिंग में दिक्कत होता है. किसी के जोड़ों में क्रैकलिंग या ग्राइंडिंग साउंड्स आती हैं, वो भी एक अर्ली साइन है. किसी पेशेंट को स्टिफनेस या हेवीनेस जॉइंट में फील होने लग जाता है, या वो चलते चलते थोड़ी देर बाद थक जाते हैं या बैलेंस बिगड़ता है. तो ये सारे अर्ली साइंस हैं आर्थराइटिस के, जिनको अगर हम जल्दी पकड़ लें और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो हम आर्थराइटिस को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं. अच्छा, क्या घुटनों
या गठिया सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी है या आज के समय में ये युवक भी इस चपेट में आ रहा है? सो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि आर्थराइटिस ग्रेजुअली यंगर एज ग्रुप को इफेक्ट कर रहा है। सो आज की तारीख में एल्डरली तो चलो एज की वजह से, वियर एंड टियर की वजह से आर्थराइटिस में पहुंचते ही हैं, लेकिन यंगर एज ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर शेयर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, because of long sitting hours, because of lack of vitamin D, which is a very important factor. All these factors are contributing for arthritis happening at younger age group, Okay. which is a more worrisome thing because India की sizable population percentage, economically viable है। अगर उन्हीं में ही arthritis हो जाएगा तो economy कौन चलाएगा? Because we are the youngest nation in the world today. At what stage does knee or joint replacement surgery becomes the only option? सो जॉइंट रिप्लेसमेंट समझ लो इस पूरे स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रीटमेंट में लास्ट ऑप्शन होता है, जिसका पेन डेली सीवियर हो जाए और वो कांस्टेंट हो, डेली होता हो। वो एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें बाकी सारे इलाज यानी कि मेडिसिन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, कुछ हमने और ट्रीटमेंट जो सारे होते हैं वो फेल हो चुके हों। और एक हम कहते हैं कि एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जिसमें कि उठना बैठना, वॉकिंग करना, सोना, सीढ़ी चढ़ना, ये सब एक्टिविटीज भी कॉम्प्रोमाइज होने लग जाए तो वो ऐसे पेशेंट हैं जिनको जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ जाती है। और उस रिप्लेसमेंट से पहले उन्होंने सब तरीके की चीज़ें यानी कि मेडिसिन फिजियो सब ट्राई कर चुके हैं। कुछ लोगों को हम इंजेक्शंस भी देते हैं, ग्रीस के इंजेक्शन होते हैं या पीआरपी इंजेक्शन जिसको बोलते हैं। इन सब चीज़ों को करने के बाद और एक और इसका कंफर्मेशन होता है कि जब हम एक्सरे करते हैं तो बोन टू बोन कांटेक्ट हो जाता है, बोन टू बोन आर्थराइटिस हो जाता है। राइट। उसको हम स्टेज 4 या एडवांस आर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गैप होता है, गैप में एक्चुअली कार्टिलेज या ग्रीस होता है। राइट। तो धीरे धीरे जब ग्रीस खत्म होकर जब बिल्कुल जीरो हो जाता है तो बोन से बोन रगड़ना शुरू होता है। इसीलिए ओल्ड एज में बहुत सारी लेडीज बोलती हैं कि हम चलते हैं तो टक टक आवाज आती है, करवट लेते हैं तो सोया नहीं जाता, कि एक घुटने से घुटना टकराता है तो दर्द होता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये एंड स्टेज आर्थराइटिस के, जिसमें फाइनली एक ऑप्शन जॉइंट रिप्लेसमेंट बच जाता है। क्या मरीज जोड़ बदलने की सर्जरी से डरते हैं? इसको लेकर सबसे आम गलतफहमियां कौन सी हैं? मरीज बिल्कुल डरते हैं। हर पेशेंट को मैं अगर मानूं कि आज पहली बार कोई मेरे पास आता है और मैं उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट का वो कैंडिडेट है, आमतौर पर 6 महीने से 2 साल लगाते हैं पेशेंट उसको करने में। मेरे अपने फादर को मैंने एडवाइस किया था 2014 में, उन्होंने 2017 में कराया। 3 साल उन्होंने भी लगाया और दुनिया जहाँ के ये होम्योपैथिक इधर जा उधर जा सब तरीके ट्राई किए, तो फाइनली उन्होंने भी 3 साल लगाया। तो हर पेशेंट डरता है, उसको लगता है कि इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको ये लगता है कि इसमें सर्जरी के बाद का जो रिकवरी पीरियड है बहुत पेनफुल होता है, उसको ये फील होता है कि मैं कभी नॉर्मल चल नहीं पाऊंगा, ये आर्टिफिशियल जॉइंट है, पता नहीं मेरा बॉडी का वेट ये एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। और जो आसपास की स्टोरीज होती हैं उनको सुन के पेशेंट थोड़ा फियर फैक्टर ज्यादा हो जाता है। How safe is knee replacement surgery today and what is the success and recovery rate? So knee replacement अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें, it is successful in more than 95 to 97% of patients. Okay. और सक्सेस इसलिए भी हम मैप करते हैं, एक तो कि कितने लोगों में वो पीसफुली हो गया और कितने साल तक वो चला। तो एवरेज एक हमारा जॉइंट अच्छी क्वालिटी का जॉइंट 20 to 25 ईयर उसका लाइफ होता है। और उसके साथ उसकी लाइफ सिर्फ उस इम्प्लांट पर डिपेंडेंट नहीं है, आपने उस जोड़ को कैसे इस्तेमाल किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एनालॉजी दे रहे हैं कि भाई आप चला तो BMW रहे, लेकिन अगर ड्राइवर ही सही नहीं है तो वो गाड़ी तो वो भी ठोक सकता है, वो भी खराब कर सकता है। सो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हो और आप अपना वेट मेंटेन करो, आप अपना शुगर कंट्रोल कर रहे हो और आप अपना जॉइंट रिप्लेसमेंट के साथ 4-5 किलोमीटर चल भी रहे हो, हफ्ते में 2-3 बार एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो वो फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है उसकी लॉन्गेटिविटी के लिए। बट आमतौर पर एक इम्प्लांट अगर उसको प्रॉपरली नर्चर किया जाए, पेशेंट अपना सब एक्टिविटीज़ करे, सारी डॉक्टर्स की सलाह माने, तो 20 से 25 साल चलता है। तो एक लाइफ लॉन्ग समझ लो, क्योंकि नॉर्मली किसी को 60s में ये ज़रूरत पड़ती है, तो 20 से 25 साल यानी कि वो अपनी एंटायर लाइफ स्पैन को एक जॉइंट रिप्लेसमेंट से पीसफुली चला सकता है। ओके। घुटना बदलने के बाद मरीज किस तरह की जिंदगी जी सकता है? क्या वह सामान्य रूप से चल सकता है और सीढ़ियां चढ़ सकता है क्या वो? पोस्ट रिप्लेसमेंट सारी वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो उनको डेली लिविंग के लिए चाहिए, चाहे वो वॉक करना हो, वॉक मतलब ब्रिस्क वॉक भी हो सकता है, 4-5 किलोमीटर्स भी हो सकता है, उसमें स्टेयर क्लाइंबिंग हो गया, स्टैंडिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, और जो लो कॉन्टैक्ट वाले स्पोर्ट्स होते हैं
ऐसा नहीं कि वो क्रिकेट खेलेंगे या फुटबॉल जाके भागना दौड़ना शुरू होंगे, वो एक्टिविटीज एडवाइजेबल नहीं होती, बट रूटीन एक्टिविटीज साइकिलिंग वगैरह ये सब कर सकते हैं, चेयर योगा कर सकते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो वो हम प्रोहिबिट करते हैं, मेनली जो फुल स्क्वाट होता है, जैसे हम इंडियन वॉशरूम यूज करते हैं, वो अवॉइड करने को बोलते हैं। बट अपने एक्टिविटी तो डेली लिविंग में जिसमें सोना उठना बैठना, मूवमेंट करना, स्टैंडिंग करना, ड्राइविंग करना, ये सब एक्टिविटीज वो कर सकते हैं। क्या बिना सर्जरी के ऐसा इलाज मौजूद है जिनसे जोड़ बदलने की जरूरत को टाला जा सके? जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसे मैंने बताया एंड स्टेज ट्रीटमेंट के लिए होता है, तो उससे पहले मतलब वो स्टेज 4 में है, मान लिया कोई पेशेंट हमारे पास अर्ली आ जाता है या हम उसको डायग्नोसिस पहले कर लेते हैं कि अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट का स्टेज नहीं है, तो हमारे पास बड़े सारे ऑप्शन हैं। और मैंने देखा है कि अगर कोई पेशेंट रिलीजियसली थोड़ा इनिशियल मेडिकेशन लेगा, अपने घर पे एक्सरसाइजेस करेगा, थोड़ा फिजियोथेरेपी रेगुलर बीच बीच में कराएगा, और थोड़ा होम रेमेडीज जैसे कि आयुर्वेदिक तेल का मसाज हो गया, ये भी कहीं ना कहीं मसल्स की टेंशन को रिलैक्स करता है। तो ये सारे जो इलाज हैं, इनसे भी पेशेंट्स की आर्थराइटिस को हम काफ़ी लंबे समय तक आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। कई पेशेंट जो इन सब चीज़ों से भी इफेक्टिव नहीं होते या इम्प्रूव नहीं हो पा रहे होते, हम उनको पीआरपी और विस्को सप्लीमेंटेशन यानी कि ग्रीस के इंजेक्शन देते हैं, उससे भी उनको काफ़ी महीनों से सालों तक इम्प्रूवमेंट आता है। और जब वो फाइनली लास्ट स्टेज तक पहुंचता है, दैट इज अ स्टेज वेयर दीज ट्रीटमेंट्स मे नॉट बी वेरी इफेक्टिव फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो हम स्टेज के हिसाब से पेशेंट की आर्थराइटिस की स्टेज के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट उनके लिए बेस्ट रहेगी। अगर कोई ऐसा पेशेंट लास्ट स्टेज पे आता है और उसको लगता है कि नहीं मैं अभी और थोड़ा वेट करना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ एनी रीजन, चाहे उसका फियर फैक्टर हो या उसका अटेंडेंस, कई बार ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं उनके बच्चे बाहर सेटल्ड हैं, वो आएंगे तो उनके सामने वो सर्जरी कराना चाहते हैं, तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम उस स्टेज पे भी उनको थोड़ा मेडिसिन, फिजियो, बेल्ट वगैरह लगा के इससे हम कुछ महीने निकालते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज फिजियोथेरेपी बिफोर एंड आफ्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी? तो फिजियोथेरेपी का रोल सिर्फ सर्जरी के बाद का नहीं, सर्जरी से पहले भी होता है कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी बॉडी को सर्जरी कराने के लिए, तो उसको सर्जरी के बाद वाले को हम कहते हैं रीहैब। ओके, ठीक है। सर्जरी से पहले वाले को हम कहते हैं एक्सरसाइज को प्रीहैब। तो जो प्रीहैब है, प्रीहैब क्या करता है, आपकी बॉडी को, आपके जॉइंट को तैयार करता है, कस्टम करता है उसको, वो स्ट्रेंथ उसकी बढ़ा देता है, टोन बढ़ा देता है। तो you are likely to have better outcome if you start doing exercises before the operation. Okay. और सर्जरी के बाद अगर हम प्रॉपरली 4 to 6 वीक्स का अपना एक्सरसाइज रेजिम जो फॉलो करें, तो हमारी वॉकिंग कंफर्टेबल हो जाती है, हमारी स्पीड बढ़ जाती है, हमारी डेली एक्टिविटीज पेन फ्री हो जाती है, हमारा बैलेंस अच्छा हो जाता है। तो कुल मिला के 4 से 6 हफ्ते का जो पेशेंट अच्छे से पोस्ट सर्जरी की एडवाइस मानता है, तो वो अपने जॉइंट का रियल कंप्लीट बेनिफिट को एंजॉय कर पाता है। Okay. What simple steps can people take to protect their knees and joints in daily life? So steps में देखें, सबसे इम्पोर्टेंट तो जो आते हैं लाइफस्टाइल है, वही सबसे मेजर चीज़ है जिसको लोग आराम से चेंज कर सकते हैं। वो उनकी अपनी सेल्फ मोटिवेशन पे डिपेंडेंट है। चाहे वो समय समय पे ग्रेजुअली अपना एक फिजिकल एक्टिविटी का रिजीम रखें 40 to 50 मिनट्स का दिन में, चाहे वो आपका नॉर्मल योगा एक्टिविटी हो, चाहे वॉक हो, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे ओपन जिम एक्टिविटीज हो, चाहे वो जिमिंग एक्टिविटीज हो, some form of physical activity is very important to keep the joints moving. Okay. So that's one part. The other part is a nutrition, focus on nutrition, wherein you should have adequate amount of protein in your diet. वो प्रोटीन वेजिटेरियन भी हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन भी होता है, सप्लीमेंट फॉर्म में भी हो सकता है, और साथ में कैल्शियम विटामिन डी का रेगुलर कंजम्पशन एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस वो होना चाहिए। और इन सब चीज़ों के साथ अपना जो लॉन्ग सिटिंग आवर्स है वो तो बिल्कुल अवॉइड करना है, वेट को मेंटेन करना है, और सनलाइट एक्सपोजर लेना है। आउटडोर एक्टिविटीज मोर इम्पोर्टेंट। अपने घर के अंदर जो हम बैठने के जो लेवल्स हैं वो एटलीस्ट 1.5 फुट का होना चाहिए। जब लो हाइट्स पे बैठेंगे तो उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ नीज पे बल्कि बैक पे पड़ेगा। What message would you like to give to people suffering silently from knee pain and joint problems? Crux of the entire discussion is that the majority of preventive strategies for preventing knee arthritis lies changing your lifestyle, bringing change in your way of living, in the kind of food you eat and the kind of outdoor activities you have, and being aware of those simple steps or treatment modalities so as to prevent your knee going from one stage to an advanced stage. So if you try and adopt these changes, definitely you can live a pain-free, mobile, a very long active life
without having to undergo any kind of surgical procedure or any other advanced treatment for the knee arthritis. डॉक्टर आशीष, ये जॉइंट पेन्स सर्दियों में क्यों ज्यादा बढ़ जाते हैं, वर्सन हो जाते हैं? तो दो चार चीजें होती हैं। एक तो सर्दियों में आपकी मोबिलिटी कम होती है, तो आपकी मसल उतनी मूव नहीं करती है। आपका पानी का इंटेक कम होता है, इसलिए जब आपका पानी का इंटेक कम होगा तो मसल्स का हाइड्रेशन लेवल कम हो होता है, जाएगा, तो मसल्स ज्यादा स्पैज्म या टाइट हो जाती है। आपका डाइट बढ़ जाता है, राइट, आप खाना ज्यादा खाते हैं लेकिन बर्न कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो वेट इंक्रीज होता है, लॉन्ग सिटिंग और बढ़ जाती है, आपकी आउटडोर एक्टिविटी खत्म हो जाती है। सो कुल मिलाकर सनलाइट होता नहीं है तो वैसे भी एक्सपोजर कम हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स में की वजह से मसल्स की इन्फ्लेमेशन, टाइटनेस विंटर्स में बढ़ जाता है। इसी वजह से एल्डरली पेशेंट्स को नी आर्थराइटिस के पेन भी सर्दियों में ज्यादा होता है। ठंड का मौसम जोड़ों के अकड़न और मूवमेंट कम क्यों कर देता है? वो इसलिए कम करता है क्योंकि हमारी मोबिलिटी कम हो जाती है और हमारे मसल्स का उतना क्या कहते हैं, सपलनेस खत्म हो जाता है, क्योंकि ना तो हम उनको मूव कर पा रहे हैं, ना उनकी हम एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, ना ही उनको एडिक्वेटली हाइड्रेट कर पा रहे हैं फ्लूइड से, लिक्विड से, वाटर से। अच्छा, लोगों की कंप्लेंट ज्यादातर ये होती है कि सुबह के वक्त लोगों को ज्यादा जॉइंट पेन होता है, इसका रीजन क्या है? मोस्टली ओवरनाइट जब स्लीपिंग के बाद, अगर आपने स्लीपिंग से पहले अपना वाटर इंटेक अच्छा नहीं लिया, आपने प्रीवियस डे पे एक्सरसाइज कम किया हुआ है और आप 8 घंटा उसी मोड में आप सोए हैं या 7 घंटा सोए हैं, तो अर्ली मॉर्निंग 4 to 5 में जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता है सबसे ज़्यादा, एंड यू गेट अप, सबसे ज़्यादा मसल्स का डिहाइड्रेशन उस टाइम होता है। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस एक वन ऑफ द कॉमन रीज़न है फॉर एल्डरली टू फेस नी पेन मोर इन द मॉर्निंग। जिन लोगों को दूसरे टाइप का आर्थराइटिस होता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उनका साइन ही यही होता है कि अर्ली मॉर्निंग वो ट्रिगर करता है, किकिंग करता है, because of the low temperature, because of the immobility for last 7 hours. Okay. अगर कोई दोपहर को भी 3 घंटा सो जाएगा और उठेगा तो उसको फिर वही वैसी फीलिंग आएगी, स्पेशली इन विंटर्स। अच्छा, सर्दियों में घुटनों और जोड़ों के लिए कौन सी एक्सरसाइज हैं जो बहुत ज़रूरी हैं? सो नी के लिए तो बेसिक, अगर घर पे एक पेडल साइकिल हो और सिंपल 1 फ्लोर स्टेयर क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं और हाफ स्क्वाट्स भी कर सकते हैं, और आजकल वो वेट कफ्स आते हैं, आधा किलो का वेट कफ्स आते हैं, नी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कर, ये तो बेसिक है जो घर पे दादा दादी ओल्ड लोग भी आराम से कर पाते हैं। क्योंकि हम अपनी नी पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि चलो आप सर्दी में बाहर नहीं जा सकते हैं, एटलीस्ट घर में ये बेसिक 4-5 एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, हाउ इम्पोर्टेंट इज वार्म अप बिफोर एक्सरसाइज? इट इज इम्पोर्टेंट। और वॉकिंग, जैसे वॉक भी कर रहे हैं तो उसके लिए वार्म अप करना जरूरी है आपको? वार्म अप, सो वॉकिंग में तो क्या है कि आप ग्रेजुअली स्टार्ट स्लो एंड स्टेडी से अपना स्पीड बढ़ाएंगे, एक लिमिट तक, पीक तक जाएंगे, फिर धीरे धीरे कूल डाउन भी करेंगे और फिर आप स्टॉप करेंगे। राइट, ये हर एक्सरसाइज में वैलिड है, चाहे वॉकिंग हो, इनफैक्ट स्पोर्ट्स भी है। इस टाइम पे जैसे आई प्ले बैडमिंटन, तो मेरे को पता है कि मुझे 15 मिनट पहले वार्म अप करना, बिकॉज एक बार मैंने नहीं किया था, एंकल इंजरी दैट वेरी सिंगल डे बैक इन 2019. So warm up is extremely important and cool down is equally important. Stretching and cool downs. Does diet play a role in controlling joint pain during winter? What should people include? Diet में mostly Indian diet is rich in carbohydrates. Right. Protein content is less, and after 40 years of age, every year we lose 1% of our muscle mass also, apart from the fat. तो हम खा रहे हैं लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो फैट तो बढ़ रहा है, लेकिन एज के साथ साथ मसल कम हो रहा है, और हम उसको रिप्लेनिश करने के लिए हमारी डाइट में लेस देन 20% हमारा प्रोटीन होता है। प्रोटीन इंटेक हैज टू इंक्रीज। अनफॉर्चुनेटली वेजिटेरियन में ऑप्शंस कम होती हैं या लोगों को पता ही नहीं होती है। जैसे कि आजकल किनुआ बहुत कम लोग खाते हैं, कम लोग पता होता है। स्प्राउट्स हो गया, पल्सेस हो गया, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, सत्तू हो गया, ये सारी चीज़ें अबंडेंस में अवेलेबल हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। तो अगर किसी को सही से मालूम हो कि व्हाट आर दी, लोग सोचते हैं भी जब तक हम नॉन वेजिटेरियन नहीं तो हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा, बट ऐसे बहुत सारे ऑप्शन वेजिटेरियन में भी हैं, और आजकल प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी अवेलेबल है विच इज इजिली डाइजेस्टेबल ऑल एज। क्या सर्दियों में जोड़ों के दर्द के लिए गर्म पानी की थैली या हीट थेरेपी सुरक्षित है? हाँ, सो हॉट थेरेपी वर्क्स वेल फॉर जॉइंट्स, बैक प्रॉब्लम्स, स्पेशली इन विंटर्स। सो ओनली थिंग इज, किसी का सर्जरी होता है तो उसके बाद हम हॉट फॉर्मेंटेशन नहीं एडवाइस करते फॉर द इम्प्लांट पर्पस, बट अदरवाइज रूटीन में इफ यू डू हॉट थेरेपी, व्हाट इट डज, इट वार्म्स द मसल्स, reduces the stiffness, improves the blood flow, and that helps in pain relief. And how important is to keep the knees and joint warm during winters? So most of the patients elderly जिनको नी पेन्स होते हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं कि या तो नी कैप हो गया या वो वूल वाला
knee supporter होता है, Mhm. they should wear those things. They should have always stay in an ambient temperature of at least 27 degrees, and they should avoid exposure of cold, because the moment the arthritic joint gets exposed, Mhm. the pain will increase Okay. because of the reasons which we discussed. Right, right. Many people increase painkiller use in winter. What precautions should they take? पेन किलर बहुत सारे हैं, और बहुत सारे लोगों को एक पर्टिकुलर सॉल्ट से जिससे आराम आता है, जैसे डिक्लोफेनाक बहुत कॉमनली यूज करते हैं लोग, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 भी वो खाते रहते हैं, बीच बीच असर कम लेते हो रहते जाएगा हैं, उससे किडनी पे Oh my और स्टमक पे असर होने लग जाता है. उसका? So any painkiller taken more than 4 weeks at a stretch, that is 30-40 tablets, they start affecting the kidney. So we see, अगर हम एल्डरली पेशेंट का KFT देखते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट देखते हैं, और जहाँ उनका क्रेटिनिन 1.2 1.4 होने लग गया, दैट मीन्स हमें इनडायरेक्टली हम पूछते हैं जब उनसे, तो हम भी बताते हैं हम 6 महीने से पेन किलर खा रहे हैं. Oh. तो धीरे धीरे वो किडनी पे इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है. तो पेन किलर्स को बहुत ही केयरफुली, और आजकल एज के हिसाब से, आपके डिजीज के हिसाब से काफी सेफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो अपने डॉक्टर से वो कंसल्ट कर सकते हैं. When should winter joint pain be taken seriously and medical help sought? सो विंटर जॉइंट पेन्स, जब भी आपका अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत बढ़ गया है, स्पेशली दैट स्टिफनेस इज स्टेइंग बैक फॉर एटलीस्ट 30 minutes when you get up, and you're not able to even go to the washroom the first thing in the morning, and it takes a while to actually stand, straighten, and then start walking, that means there is something seriously wrong. We should get it evaluated. And if you start getting muscle cramps very frequently, leg muscles में सबसे ज़्यादा cramps होते हैं, अगर वो बहुत frequent हो रहा है, that every time you keep massaging, doing hot therapy and coil massaging, that's also another sign that the either the winters or is impacting, or your mobility or exercise is negligible, or maybe your electrolyte imbalance is there. So we have to see patient holistically, उनका previous medical history क्या है, उनका अभी exercise level क्या चल रहा है, उनके क्रैम्प्स कितने फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, उनका आर्थराइटिस कितना है, ऑल दिस फैक्टर्स प्ले. बुजुर्गों और गठिया के मरीजों की सर्दियों में कौन सी विशेष सावधानी रखनी चाहिए? एक तो कोल्ड एक्सपोजर एल्डरली के लिए इस दिसंबर जनवरी इन दिल्ली इज वेरी हार्मफुल, बिकॉज जैसे ही वो स्पेशली द चेस्ट एरिया, बिकॉज आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक के केसेस दिसंबर जनवरी में सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं. एवरी डे आई गेट अ कॉल इन द नाइट 2-3 बजे, हर रोज 3-4 एल्डरली पेशेंट आ रहे हैं. उनका रीजन यही है कि उनको कोल्ड एक्सपोजर होता है, उनकी वेसल्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, 60-70% ब्लॉकेज में चल रही होती है. जैसे ही ठंड पड़ती है वेसल सिकुड़ती है और वो ब्लड क्लॉट कर देता है और एमआई कर देता है, हार्ट अटैक कर देता है. What one key message would you like to give to people to protect their joints this winter? As in the previous responses, most important thing is to look within and try and change your way of living. First of all, if you are at a stage where you can prevent the arthritis from going to advanced stage, then the preventive strategies are more effective, inexpensive, and they can give you a longer, healthy, pain-free joint. If you have already reached a stage which is an advanced stage where you need some help, some treatment, whether it is medical or surgical, don't delay it just because you have a fear for, somebody will advise a surgery or somebody will advise injection. You must face that arthritis. You should consult the right doctor, get the treatment, and just follow it, so that whatever disability is there, we can mitigate that by taking the right treatment, so that we have a longest possible pain-free mobility. How expensive is joint replacement or knee replacement these days? Nowadays, with the government's initiative of doing price capping on the implant, it has become more predictable, more affordable. That's why in last 10 years, the number of joint replacement has risen 4 times in India, whereas the growth rate was less than 10% before that regulation came in. Now it is available even in tier 2 and 3 cities, and a lot of doctors are now offering their services very close to their homes. Otherwise, people from Bihar and other states used to travel only to Delhi, to bigger hospitals, but that was not available anywhere else. And since it was a situation where there is only handful of people doing it, so the cost was very high. Now it's available everywhere. Government has regulated the implants, so it has become more affordable, more available at all the locations. So that's why the procedure is also available, and it's becoming more and more safer also. अच्छा, ये बताइए कि ये जो फिलहाल की जो जनसंख्या है, या पुराने लोग थे या उससे पहले लोग थे, तो ये जॉइंट प्रॉब्लम या नी प्रॉब्लम
अब ज्यादा हो रही है या पहले ज्यादा होती थी, या पहले अवेयरनेस नहीं थी या अब अवेयरनेस ज्यादा है? पहले अवेयरनेस कम थी बट उनका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी था, इसलिए उनको होता ही कम था। आजकल अवेयरनेस है लेकिन लाइफस्टाइल पुअर है, तो इसलिए यंग एज में भी हो रहा है। तो इसलिए अगर ये थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ उसको इम्प्लीमेंट कर लें हाँ। तो दे विल बी मच बेटर ऑफ देन दोज प्रीवियस जनरेशन। अनफॉर्चुनेटली today I see a 85-year-old patient, his joint is better than a 40-year-old young boy. Okay. Okay, so their joints are worse than the older generation. Okay. Because of the kind of Yes. food they have taken, Yes. the kind of every day they must be walking for 5 kilometers. Right. We hardly walk. Walk. Okay, just throw some light on robotic surgery. So robotics, has been showing great success in many industries. In last 1 decade, it has, healthcare has seen surge of robotics, especially starting from a Da Vinci robot, which takes care of surgeries in the soft tissue region like head and neck, Right. cardiac, gastro, urology. Orthopedics, the robotic is available for last 8 to 10 years, and in my own 5 years experience of handling robotic procedure, it is a revolutionary technology. It brings in more precision, it reduces the blood loss, it reduces soft tissue handling. Thus overall the pain scores are much lesser, and we are able to achieve a very good precise outcome, which is the precision is of the tune of 0.5 millimeter, which with the naked eye or with manual intervention it is not possible at all. So definitely it's a new age technology, which is the ultimate goal is to improve the patient outcome. If the patient outcome is improving, then this technology will continue to help more and more people, and it will continue to evolve. तो क्या लोग इस पे तैयार हैं, लोग राजी हो रहे हैं रोबोटिक लोग- सर्जरी के लिए? लोगों को आजकल काफ़ी इन्फॉर्मेशन है रोबोटिक्स के, दे आर प्रीटी एक्साइटेड, बट देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन दैट इट इज नॉट द रोबोट हु डज द It's सर्जरी, doc- it robot only acts like an assistant tool. Right. If I don't know the technology, the right use of technology, I will do more harm than good. like flying a drone. Yeah. So if you don't know it, you will crash it. Yes. So one thing is very important: if patients want to opt for robotic, they should see where there is a proper trained center or a center of excellence who is delivering robotic care time and again and to multiple patients. So choice of the center should be extremely important option, because not every robot which is there, that the operator has to be proficient with the way the robot has to be used, because if you use the robot wrongly, if you give a wrong input into the robot, it will execute the wrong work. So that should not happen. So rightly used technology, I think it's going to create a lot of differences. I have seen myself that robotic surgeries the patients are faring much better, the outcomes are better, they are able to stand, walk the very same day, they are able to go back to their normal life within 4 to 6 weeks. तो ट्रेडिशनल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में फर्क क्या है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? फ़र्क ये है कि उसमें हमारा इंसिजन बड़ा होता है, ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यूज़ को ओपन करना पड़ता है, प्रोसीजर थोड़ा सा पेनफुल ज़्यादा होता है, और उसमें प्रिसीजन हमारी मैनुअल नेकेड आई से बैलेंसिंग जो हम करते हैं, बट हमें 1 डिग्री 1.5 डिग्री 2 डिग्री का इतना अंतर हमारी आंखों को नहीं पता लगता है। लेकिन रोबोट क्योंकि वो सीटी स्कैन की इमेज उठाता है और सर्जरी की इमेज को, और जो हम मैपिंग करते हैं ओपन करके, उनको फ्यूज करता है, एंड देन वो आपको एडवाइस करता है कि ये 2 मिलीमीटर कर रहे हैं या 4 मिलीमीटर कर रहे हैं। सो वी गेट रियल टाइम फीडबैक कि हम जो कर रहे हैं वो कितना डिग्री करेक्ट है, कितना एक्यूरेट है, 99% एक्यूरेट है या 80% एक्यूरेट है, एंड बिफोर वी डू दैट बोन कटिंग हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। वी हैव द कैपेबिलिटी टू इम्प्रूव आवर आउटकम्स इमीडिएटली राइट ऑन द ऑपरेटिंग टेबल। तो रोबोटिक सर्जरी आप खुद करते हैं, आपका कोई असिस्टेंट होता है वो कर रहा होता है, या यू गेट ट्रेन फॉर इट? So we got trained. Okay. Now we do ourselves. ओके, With the robot, we do lot of pre-planning. राइट, So जब हम रोबोट सर्जरी करते हैं उसकी तैयारी 2 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। ओके, उसका पेशेंट का सीटी करना, उस सीटी को उस सॉफ्टवेयर में डालना, उस सॉफ्टवेयर में उसकी प्लानिंग करने की कौन सा साइज लगेगा, कितना बैलेंस है, कितना डिफॉर्मिटी है, वो सारा मैकेनिज्म आता है। फिर जब वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन में जब हम ओटी के अंदर जाते हैं, फिर उसको वैलिडेट करते हैं पेशेंट का नी ओपन करके, और वो सॉफ्टवेयर में डालते हैं, फिर दोनों को मैच करते हैं, देन वी बैलेंस द नी एंड देन वी डू द कटिंग। थैंक यू डॉक्टर आशीष, टॉकिंग टू हेल्थ ऑन एयर। राइट।